गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। एंड वैक्यूल जो है सबसे पहले द टर्म वाज गिवन बाय अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट कॉल्ड एज द फिलिक्स डूजॉन, okay, 1841. And after that in 1885 de Veris named the vacuole membrane as tonoplast. So in your syllabus you have about tonoplast. So we'll just study that, what it is and what is its function, how it is differentiated from plasma membrane, and what are the different kinds of channels uh, and pores are present on the tonoplast, which helps in the carrying out the function that is assigned to vacuole. So first of all, tonoplast is a cytoplasmic membrane that delimits the plant vacuole. Okay, delimits the plant vacuole, and it helps in regulation of ions, waters, nutrient between the cytosol and the vacuolar lumen, okay, via its membrane proteins. So we'll be studying membrane proteins also. It is a unilayer, it is not a bilipid layer, right? It is a unilayer and has the lipid bilayer, and the lipid bilayer, more lipids are polar type of lipids, and because of this it provides the elasticity and fluidity to the tonoplast, because you know that tonoplast जो है वो बड़ा छोटा होता रहता है, right, depending upon the availability of the cell. Now the fatty acid called alpha tocopherol, uh, presence of this fatty acid help to increase the antioxidant activity of the vacuole, okay. Then if we see the function of the vacuole, it helps in the sequestration of harmful substances. That means कि सेल के अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर बन रहे हैं या आ जाते हैं तो वो सारे के सारे जो है वो वैक्यूल अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है ताकि सेल को कोई नुकसान ना पहुंचे, राइट. देन इट आल्सो हेल्प्स to store water, to store waste product, right, and to store food and to store protein. Then it also help in the maintenance of the turgidity of the cell, and इसका जो सेल का जो एसिडिक कंटेंट है, ठीक है, और यू कैन से द pH कंटेंट. Sometimes we also refer to as the homeostasis of the cell is maintained by the channels, हाइड्रोजन पम्प्स एंड कैल्शियम पम्प्स, ठीक है. तो इन दोनों की स्टोरेज की वजह से कि कितना हाइड्रोजन जो है वो वैक्यूल के अंदर जाना है, कितना सेल में रहना है, तो pH लेवल जो होता है सेल का वो मेंटेन रहता है, ठीक है. सो वैक्यूल जो है सेल के साइज़ को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है. व्हेन द सेल इज़ ग्रोइंग, at that time the vacuole enlarges and it creates a pressure on the cell wall, so that, and then the materials are laid down, okay. So ultimately the cell enlarges. It also helps in the autophagy, that is the endocytosis या exocytosis, जिसको हम लोग पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस का नाम हमने दिया है, ठीक है. Now if we see the difference between the tonoplast and the plasma membrane. So tonoplast is semi permeable membrane around the vacuole of the plant cell, ठीक है. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो है ये साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है, ओके, सभी सेल्स की. It separates the vacuole from the cytoplasm, and it separates the plasma membrane separates the external environment from the cytoplasm. So obviously अगर ये vacuole के चारों तरफ है तो it helps in the regulation of the ion movement in and out of the vacuole.
whereas the plasma membrane regulates the ion movement या ion transport in and out of the cell. ठीक है, और ये इट इज़ यूनिक टू दी प्लांट सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हर एक सेल में प्रेजेंट होती है. एनिमल सेल में हम लोग इसलिए इसको ज़्यादा नहीं कर रहे हैं बिकॉज एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल. ओके, and it also help in the turgor maintenance of the turgor pressure of the cell and ion movement, and it helps, plasma membrane helps in the adhesion and conductivity and attachment of the any extracellular structure. Okay, so this is the initial introduction to the tonoplast. So tonoplast has to regulate the content and volume inside the plant cell and to maintain the homeostasis, all these functions here. Okay, so because of that, for coordination of all these activity, the tonoplast show the presence of certain transporters, channels, okay, pathways that are present in the tonoplast. So the first channels that we have to study, it is the vacuolar type of ATPase that is present on the tonoplast. Okay, apart from VTPase, which is the short form, they also have the H plus pyrophosphate जिसको VPPase बोलते हैं, फिर एक्वापोरिन है. ठीक है, एंड देन देर आर सर्टेन मेटल ट्रांसपोर्टर्स जिसको वैक्यूलर कैल्शियम ATPase बोलते हैं, एंड देन there are certain antiporters like vacuolar calcium and hydrogen antiporters and sodium and hydrogen antiporters. ठीक है, तो इनको फिर हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम लोग जो मेन इसका जो ये है एंजाइम है जो कि इसकी टोनोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूलर टाइप ATPase विच इज़ दी VTPase. ठीक है, so it is an ancient enzyme. It is present in all eukaryotes. It hydrogen, it helps to pump the proton is H plus, okay, across the membrane from cytoplasm to vacuolar sac. सो ये जो है ATP सिंथेज आपको पता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. तो ATP सिंथेज का काम क्या होता है कि इट्स अ प्रोटॉन चैनल जो कि एनर्जी यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन, है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है उसके अंदर, और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस ATP. वेरएज अगर हम VATPase की अगर हम बात करेंगे तो ये भी एक प्रोटॉन पंप है. ये क्या करता है, इट यूजेस द एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, ATP हाइड्रोलाइज करता है ये, और ये प्रोटॉन पंप बनाता है. इसके अंदर ये उल्टा है. ठीक है, इसके अंदर उल्टा है कि इसके अंदर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज़ करता है टू प्रोड्यूस ATP. हियर इट यूजेस ATP टू प्रोड्यूस द प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, सबसे बेस्ट स्टडीज़ VTPase जो है वो यीस्ट का है, जिसके अंदर जो स्टडी किया गया और उस कॉम्प्लेक्स में 13 सब यूनिट्स जो हैं वो उनको मिली, जिसको हम VATPase कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. एंड इट हैज़ गॉट 2 डोमेन्स. ठीक है, एक है V0 डोमेन और दूसरा है V1 डोमेन. तो V0 डोमेन जो होता है वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर, और ये जो V1 है ये होता है पेरिफेरल, यानी कि बाहर की तरफ होता है. ठीक है, इसका जो मास है इट इज़ अराउंड 100 to 90 किलो डाल्टन, 9 किलो डाल्टन, एंड हियर इट इज़ 70 to 10 किलो डाल्टन. ठीक है,
तो ये इनके मासेस हैं दोनों के। और ये जो हमारा पेरीफेरल डोमेन है, इसको हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 8 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 8 सब यूनिट्स जो होती हैं वो A to H जो है 8 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या क्या होती हैं इसको हम देखते हैं अभी। ओके, सो पहली है हमारी कैटालिटिक यूनिट, राइट। इसकी 3 कॉपीज़ होती हैं, 3 कॉपीज़ ऑफ A एंड B, राइट। और फिर सेकंड है स्टेटर यूनिट, स्टेटर यूनिट जिसके अंदर आते हैं हमारे E एंड G, इनकी भी 3 कॉपीज़ होती हैं। फिर हमारे पास 1 कॉपी ऑफ रेगुलेटरी सब यूनिट्स होता है जो कि C और H सब यूनिट्स के अंदर आता है। और फिर उसके बाद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं रोटर एक्सेल, जिसके अंदर F और D सब यूनिट्स होती हैं। व्हेन वी आई शो द डायग्राम एट दैट टाइम इट विल बी क्लियर। ठीक है, फिर हमारा जो वी नॉट डोमेन है, वी नॉट डोमेन जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसकी 6 डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं जिनका नाम है A, D, C, C डैश, C डबल डैश एंड E, राइट। ये किसकी हैं? ये है वी नॉट डोमेन की। और V1 डोमेन जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, ओके। और V नॉट जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। इसका काम होता है V1 डोमेन का टू हाइड्रोलाइज दी ATP एंड V नॉट का काम होता है प्रोटोन की ट्रांसलोकेशन करना। ठीक है, सो जैसा कि ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, डायग्राम में दिस इज़ द V1 डोमेन एंड दिस इज़ द V नॉट डोमेन। सो V नॉट डोमेन आपको मैंने बताया था कि ये जो होता है मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द मेम्ब्रेन इन विच द V नॉट डोमेन इज़ प्रेजेंट, ओके। और V1 जो होता है वो पेरीफेरल होता है। नाउ V नॉट के जो डोमेन्स हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए A, D, C, D, वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। दिस इज द पर्पल कलर विल शो द V नॉट डोमेन। हियर you can see the C dash, C double dash, this is the E domain, okay. And this is D domain, this one, and this whole the bigger thing is the A domain, okay. So this is the subunits of the V naught. So now we will see the V1 domain, that is the peripheral domain. तो इसके अंदर आपको बताया था कि इसकी जो कैटालिटिक सब यूनिट होती है जो कि ATP को कन्वर्ट करती है ADP में एनर्जी जनरेट करने के लिए, इसकी 3 कॉपीज़ ऑफ A एंड B होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ A, दिस इज़ A एंड दिस इज़ A, तो 3 कॉपीज़, एंड दिस इज़ B एंड दिस इज़ B एंड दिस इज़ B, ओके। सो ये एक स्ट्रक्चर बनता है आपका कैटालिटिक सब यूनिट का। फिर उसके बाद जो हमारी E और G हैं उसकी हमारी भी कॉपीज़ बनती हैं। तो यहाँ पे एक ये E यहाँ पे है, एक E है और एक E पिछली तरफ है, ठीक है। एंड हियर ऑल्सो G एंड 1 G एंड अनदर E and G इज़ ऑन दी बैक साइड, ओके। सो इसकी भी 3 कॉपीज़ हो गई। देन वी हैव दी C and H सब यूनिट विच आर द रेगुलेटरी सब यूनिट्स, राइट। सो हियर दिस इज़ दी 1 कॉपी C एंड अनदर कॉपी H, ओके। C एंड H की हमारे पास ये आ गई हमारी रेगुलेटर सब यूनिट। और D और F जो हैं वो है रोटर। सो रोटर जैसे मशीन में जो रोटर जो लगा होता है, जो एक डंडा सा लगा होता है जो कि इसके घूमने से घूमेगा, तो ये जो अटैचमेंट होती है ये होती है D, और ये जो है ये है F, ये वाला है F, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ये अंदर की तरफ ये वाला जो पोर्शन है ये वैक्यूल है सारा, ठीक है। ये वैक्यूल है और ये वाला जो है ये है वैक्यूल के बाहर का स्ट्रक्चर, मतलब कि पेरिफेरल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, सो जो अभी एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो V1 है, राइट, V1 ये है, इसकी 3 A और 3 B सब यूनिट्स दे आर अरेंज अल्टरनेटिंगली यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेटिंगली विद द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट एट द इंटरफेस ऑफ A B सब यूनिट,
राइट। सो यहाँ पे ए बी सब यूनिट्स है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स होती है ATP की, राइट। और F और D जो है वो सेंट्रल स्टॉक बनाते हैं, और CEGH जो है वो पेरीफेरल स्टॉक बनाता है, राइट। सो ये है इसका V1 का। V0 में या V0 में अगर हम देखें तो D पार्ट जो होता है, राइट, D पार्ट इज़ हाइड्रोफिलिक प्रोटीन to bind the cytoplasmic surface of proteolipid ring and serve as a site of V1 subunit C and D, ठीक है। इन दोनों को बाइंड करने की साइट्स ये D और ये जो है, राइट, F, D और F, इनकी जो बाइंडिंग साइट होती है ये यहाँ पे D में जा कर के बाइंड करता है सेंट्रल कॉम्प्लेक्स का। सो टुगेदर DF एंड द स्मॉल d ये एक रोटेटरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। सो जैसा कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेज होता है, इसी तरीके से जो वैक्यूलर ATPase है वो ऑपरेट करता है बाय रोटेटरी मैकेनिज्म, राइट। एंड इन दिस मैकेनिज्म ATP इज़ हाइड्रोलाइज्ड विद इन द V1 डोमेन। यहाँ पे ये देखो ये हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ derived बाय द, ये जो हाइड्रोलाइसिस है इट हैपन्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द रोटेटरी डोमेन, ओके। और इट हेल्प्स इन द रोटेशन ऑफ द सब यूनिट, राइट। तो सब यूनिट A जो होती है, सब यूनिट A को ये क्या करता है, वो एक्चुअली सब यूनिट A जो होती है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड A3 और B3 में जो V1 का जो हेड है, यहाँ पे ये जो A है ये फिक्स्ड, ये दिख रहा है आपको, ये वाला A है, तो ये होता है फिक्स्ड, ठीक है। और वाया अ स्टेटर, ठीक है। तो वाया ए स्टेटर, ये जो इलोंगेटेड है ये एक्चुअली ये है स्टेटर है, और ये यहाँ तक चला हुआ है, राइट, ये यहाँ तक आया हुआ है। सो ये वाला जो यूनिट है ये स्टेटर का CE एंड GH जो है, राइट, इससे जुड़ा होता है ये CE G और H, ठीक है। इन सब से यहाँ पे जुड़ा होता है ये पार्ट, तो जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है, रोटेशन जो है होती है। नाउ इसकी रेगुलेटरी एक्टिविटी जो होती है, तो रेगुलेटरी एक्टिविटी में अगर हम देखते हैं तो रेगुलेटरी एक्टिविटी हेल्प्स टू मेंटेन द pH of the vacuole sac. It helps in the modulation of pump density, that is the via the control of VTPase dependent hydrogen transport across the membrane. तो ये जब हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करना होता है तो भी एसोसिएट हो जाते हैं V1 और V0, और जब हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन जो की ज़रूरत नहीं होती और pH मेंटेन रहता है ना, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तब ये इनकी जो है VTPase की ये V1 और V0 की डिसोसिएशन हो जाती है, सो दैट दी H+ आयन की जो इफ्लक्स है या इनफ्लक्स है ये रुक जाती है, ठीक है।